हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। इन फाइनेंशियल मार्केट, entities or people who want to borrow money or who have surplus funds and want to invest money, they come together and trade with each other. We can say that it is a place where organizations and people who want to borrow money come in contact with the organizations or people who are having surplus funds and they trade with each other. What are the institutions which deal in money market? They are commercial banks, central bank, acceptance houses, non-banking financial intermediaries, and bill brokers. Now, financial markets are mainly of two types: money market and capital market. In money market, we are having organized and unorganized market, and in capital market, we are having non-securities, securities, and securities is also of two types: primary security and secondary security. In this video, we will concentrate on money market only, and in the next video, we will continue with capital market. Now, let us study in detail money market. मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट इज ए प्लेस वेयर बोरिंग एंड लेंडिंग इज डन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Now first we will study organized money market. In organized money markets there are so many instruments. Organized money market we include treasury bills, call money, certificate of deposits. One is treasury bills. Treasury bills are issued by the central government. And who can participate? Participate का meaning क्या है? Who can purchase the treasury bills? These are primary dealers who are dealing with the securities, mutual funds, corporate houses, financial institutions, provident fund and pension funds and insurance company. Provident fund का क्या meaning होता है कि provident fund office जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड का हिसाब रखता है, वो या जिनके पास जो पेंशन फंड्स हैं वो परचेज कर सकते हैं. एंड द इंश्योरेंस कंपनीज कैन आल्सो परचेज द ट्रेजरी बिल्स. एंड इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी बिल्स इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस. जो मार्केट का रेट होगा उसके हिसाब से ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट मिलेगा. टाइम पीरियड क्या है? कितने समय के लिए ट्रेजरी बिल इश्यू किए जाते हैं? दे आर इशूड फॉर 91 डेज, 182 days and 364 days. Amount for issue of treasury bill is 25,000 and it can be issued in the multiples of 25,000. कम से कम 25,000 का ट्रेजरी बिल होगा एक, या उसके मल्टीपल्स में आप जितने भी खरीदना चाहते हैं उतने बिल्स आप खरीद सकते हैं. कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी. मेनली ज़्यादा फेमस जो है उसको हम कहते हैं कॉल मनी. कॉल मनी, एज द नेम सजेस्ट, कॉल मनी दैट यू हैव टू रीपे द लोन ऑन डिमांड. और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि देर इज नो कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर द लोन एंड द बोरोअर्स हैव टू पे द लोन अमाउंट एज एंड व्हेन आस्क्ड. सो इट इज कॉल्ड कॉल मनी. And who are the participants? Participants means who can lend and who can borrow. These are commercial banks, cooperative banks and primary dealers. Who are only lenders? जो सिर्फ lend कर सकते हैं, जो सिर्फ लोन दे सकते हैं, that is LIC, Union Trust of India, IDBI, NABARD Bank, GIC, selected mutual funds and insurance company. और जो डिफरेंस है, मैंने पहले लिखा था कॉल मनी एंड शॉर्ट नोटिस मनी. क्यों कहते हैं हम कॉल मनी? कॉल मनी क्या है? कॉल मनी इसलिए कहते हैं कि बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स इज डन फॉर वन डे, सो इट इज कॉल्ड कॉल मनी. एंड यू हैव टू रीपे द लोन व्हेन यू आर डिमांडेड बाय द बोरोइंग एजेंसी. उसके बाद हम नोटिस मनी क्यों कहते हैं? व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 days to 14 days. इसलिए हम इसको कहते हैं नोटिस मनी. व्हेन यू हैव टू रीपे द मनी बिटवीन 2 days to 14 days. और टर्म मनी इसको क्यों कहते हैं? व्हेन द पीरियड ऑफ लेंडिंग एक्सीड्स 14 days, then it is called term money. In India, the call money markets are in Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi and Ahmedabad.
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज ए टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। जो टाइम कितना होता है इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज बिटवीन 7 days to 1 year, and if you buy from the financial institution then it cannot be less than 1 year and cannot be more than 3 years। आपको कम से कम 1 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सीडी खरीद सकते हैं। और सीडी हैज स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट, इसकी मेच्योरिटी डेट होती है जैसे मैंने आपको बताया जितने समय के लिए आपने लिया है, फ्रॉम 7 days to 1 year, 1 year to 3 years, वो उसकी मेच्योरिटी डेट होगी। एंड देर विल बी इंटरेस्ट रेट फॉर दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। एंड दिस कैन बी इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 lakh टू एंड इन द मल्टीपल्स। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर क्या होता है, इट इज़ लाइक ए प्रोमिसरी नोट, जैसे हम प्रोमिसरी नोट में लिखते थे इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, सेम इसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1988 कमर्शियल पेपर्स को रेगुलेट करता है। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स। सब मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड इसकी 15 days होती है और मैक्सिमम जो है दैट इज़ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। and scheduled banks can act as an IPA for issuance of commercial papers। पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकती हैं, बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, एनआरआईज हो सकते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर्स। Amount invested by single investor should not be less than 5 lakhs. And maturity period of these instruments lies between 7 days to 1 year. Or commercial papers attract low interest rate in comparison to the capital market. Next is cash management bills. Cash management bills जो होते हैं उनकी जो maturity period है that is less than 90 days and they are issued at a discount and are redeemed at a face value on maturity. They are eligible for investment in government securities by banks for statutory liquidity requirements. Next is repurchase agreement. It is used by central bank. ये मनी मार्केट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको सेंट्रल बैंक यूज करता है मनी मार्केट के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। इन दिस देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन स्पॉट बेसिस एंड रीपरचेसिंग इज ऑन फॉरवर्ड बेसिस। हमारा नेक्स्ट पार्ट है मनी मार्केट का, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो एजेंसीज हैं उसमें क्या है कि दे डोंट हैव स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स फॉर डूइंग द बिजनेस इन द मनी मार्केट। तो उनके अपने ही रूल्स रेगुलेशंस होते थे। दे यूज टू चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स एंड देयर वाज नो कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी इन डूइंग द बिजनेस। तो उसमें सबसे पहले क्या था, हुंडी यूज की जाती थी। ये उनके इंस्ट्रूमेंट होते थे हुंडी। हुंडी में क्या थी, इंडिया में ये बहुत यूज होती थी। तो इसमें जो है ट्रेड करने के लिए या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हुंडीज का यूज किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर फंड्स लेकर जाने हैं तो भी इंस्ट्रूमेंट जो होता था वो हुंडी ही होती था। तो आजकल जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता था तब ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता था। तो दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी बहुत फेमस हुंडी थी। दर्शनी हुंडी, ये क्या नाम है, दर्शनी हुंडी, और एक होता था मुद्दती हुंडी। ये बहुत फेमस हुंडी थी जो इंडिया में यूज की जाती थी। नेक्स्ट है इंडिजिनस बैंकर्स। इंडिजिनस बैंकर्स कौन होते थे, इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म्स होती थी हु यूज टू लैंड एंड एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो हुंडी भी एक उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता था यूज करने के लिए कि जिससे वो प्राइवेट फर्म्स या इंडिविजुअल्स लोगों को लोन देते थे या उनसे जो फंड्स एक्सेप्ट करते थे, उनके पैसे डिपॉजिट करते थे अपने पास। थर्ड थे मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते थे, ये कोई बैंकर्स नहीं होते थे। दे यूज टू लैंड द मनी ऑन देयर ओन। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का ही पार्ट है।
तो ये क्या यूज करते थे, चिट फंड्स। जो चिट फंड्स मेनली रूरल एरियाज में होती थी और इसमें पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था टाइम टू टाइम। जो टाइम फिक्स किया है उसके हिसाब से आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो जिसकी चिट निकलती है उसको जो पैसे, उस महीने के पैसे उस पर्सन को मिल जाते थे। तो अगर ये चिट रजिस्टर्ड है फिर तो ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है देन इट इज नाइदर लीगल नॉर बाउंड टू पे द डिपॉजिटेड अमाउंट टू द सब्सक्राइबर्स। जो इसके मेंबर्स हैं अगर तो रजिस्टर्ड होगी तो फिर तो कुछ सिक्योरिटी है, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो फिर जो है सब्सक्राइबर्स आर एट ए रिस्क। तो कोई लीगल नहीं होती ये। और अगर कोई पैसे लेकर भाग जाए, आपने बहुत सुना हुआ कि जो है लोगों ने जो कमेटीज को आम सिंपल वर्ड्स में कहते थे कि कमेटी डाली है और जो कमेटी का ऑर्गेनाइजर है वो पैसे लेकर भाग गया। तो वो क्या था, दे आर नॉट लीगल एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इज नॉट सिक्योर्ड। पर अगर चिट फंड ऑफ इंडिया के अंडर जो है ये रेगुलेट की जाती है, चिट फंड एक्ट 1982 के अंडर अगर रजिस्टर्ड है वो चिट फंड कंपनी, देन इट इज सिक्योर्ड। फंड्स आर फेमस इन केरला एंड तमिलनाडु इन इंडिया। नेक्स्ट इज नीति। नीति क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी और ये सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड की जाती है। और इसका जो मेन बिजनेस क्या है, देयर कोर बिजनेस इज टू बोरो एंड लेंड मनी बिटवीन इट्स मेंबर्स। सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं वही इसमें बोरिंग और लेंडिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज निधि इज ऑल्सो फेमस इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट इज फाइनेंस ब्रोकर्स। फाइनेंस ब्रोकर्स जो है दीज आर मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। दे एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन दी बोरोर्स एंड लेंडर। जो ब्रोकर्स होते हैं अर्बन एरियाज में, अगर जो बोरोर्स लेंडर्स हैं उनके बीच में ब्रोकर्स मिडिल मैन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल मार्केट की डिटेल्ड स्टडी करेंगे।